Hello students. Okay, today I will discuss with you derivative of logarithmic function. Yesterday we have done derivative of exponential function and logarithmic function. So you know the derivative of now e raised to power x, that is e raised to power x, and derivative of log x 1 by x. Clear? And derivative of a raised to power x into log a. Okay. Today I will do the derivative of function raised to power function. Function raised to power function. So how to find the derivative of function raised to power function? So you will not use that formula because you know the first formula, function raised to power n. So that is nothing but n into function raised to power n minus 1 into derivative of function. So here is function raised to power function. How to differentiate this? So far you have not done any formula. So we take the help of log. That is why this is called logarithmic differentiation. So this result is very important. Try to understand it. And after that, I have taken the application based on this formula. So see here, function raised power function, let y equal to this. Take log both sides. Why we take the log both sides? Because this becomes log y equal to log f of x raised to power gx. Now, you know that log m raised to power n formula, that is n log m. So here I have used that formula. So this power comes here, that is n means g of x into log of fx. So now this one is the main logic to take the log because जो power है बेटा वो multiplication में convert हो गई है. ठीक है, अब हमारे पास पावर नहीं रही फंक्शन की और ये ही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी कि फंक्शन रेज्ड पावर फंक्शन. अब आपने देखा कि फंक्शन आगे आ गया n log m फॉर्मूला. And now differentiating both sides with respect to x. So what is the derivative of log y? You know derivative of log y means with respect to x. We are doing the derivative with respect to x. So log of y का जब derivative करेंगे तो log x का derivative हमने किया था, that is 1 by x. तो ये बन गया बेटा log of y का derivative 1 by y, but ये y जो है वो with respect to y होता तो 1 by y आना था. So it means this one is log of something. Log of something means 1 upon something into derivative of something. So that is why I have written dy by dx. And in right hand side, these become two functions. One is first, another one is second. So you will use the product rule. I have written directly first into derivative of second plus second into derivative of first. Now, what is gx as usual? Derivative of log of something again, because this one is not a simple x, this one is a fx. So log of something is 1 upon something into derivative of this something, that is fx का derivative. ये बेटे आपके पास f dash है. तो अच्छे से एक बार फिर देख लो, log fx का derivative 1 upon fx into derivative of fx. चेन रूल जो है हर क्वेश्चन में यूज होता है. प्लस log of fx as usual derivative of gx with respect to x, that is g dash x, that you know. ये आपके पास सिंपल रिजल्ट थे. आगे अब आपके पास देखो, इसको सिंप्लीफाई करके रख लो. y को आप राइट साइड ले जाओ, dy अपॉन dx, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दिस. सो y इंटू और अंदर बेटा ये सारा अगर जो कुछ भी आया gx अपॉन fx इंटू f डैश x,
प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। अगर मैं आपको क्लियर करूं तो ये अंदर है क्या है, ये आपके पास डेरिवेटिव था जी एक्स लॉग एफ एक्स का, और ये कहाँ से आया, जी एक्स पावर है और एफ एक्स जो आपके पास बेस था, लॉग ऑफ बेस मीन्स पावर इनटू लॉग ऑफ बेस। इसको मैं सम पेयर डायरेक्ट भी यूज करूंगा, या तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह करना है। देखो y की जगह क्या आ गया, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, और अंदर वही है जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। मतलब मैं इसको अगर बेटा शॉर्टकट में याद रखना चाहूंगा तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, मतलब फंक्शन रेज पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो पावर है वो, और साथ में लॉग ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो देखना मैंने कुछ जगह पे इसको डायरेक्टली यूज करके आपको बताया है। सो सी दैट, सी है ये आपके पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, फंक्शन रेज पावर फंक्शन। तो बिल्कुल जैसे फार्मूला किया मैंने वैसे ही स्टेप यूज किए, यू कैन यूज, और यू कैन ऑल्सो यूज डायरेक्ट फार्मूला। ये बेटे आ गया y इक्वल टू एक्स रेज पावर एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स रेज पावर एक्स, और आगे बन गया log y इक्वल टू एक्स log x एंड log m, वही फार्मूला। Differentiating with respect to x, so log of something 1 upon something into derivative of something equal to, यहाँ product rule, x into derivative of log x plus log x into derivative of x. So log x का derivative पता होगा क्या होता है, 1 by x, तो x बार था x upon x plus log x, और आपके पास ये x अपॉन x 1 बन गया। तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट बन गया बेटा, x रेज्ड पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। इस रिजल्ट को तो आप याद भी रख सकते हैं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज्ड पावर x, दैट इज x रेज्ड पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया, देखो लॉग की जरूरत कहाँ जरूरत पड़ती है, देखो यहाँ भी सिंप्लीफाई के लिए क्या है, if x minus y into e raised to power x upon x minus y equal to a, जब भी ऐसी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ज्यादा हो लॉग ले। ठीक है, लॉग से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और पावर कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो ये देखो ये आपके पास गिवन फंक्शन था, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही मैंने वो दोनों साइड लॉग लगाया तो यहाँ लॉग m आपके पास फार्मूला बन गया, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा m है और ये इंटू n। तो फार्मूला क्या कहता है, लॉग m इंटू n लॉग m प्लस लॉग n एज यूजुअल। और साथ में बेटा अब अगर इस टर्म को देखें तो ये पावर में है, बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ बेस नहीं लिखा जाएगा, मीन्स बेस इज e, नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, तो ये आपका पावर का आगे आ जाएगा, लॉग m रेज टू पावर n, फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं हो रहा है, n लॉग m। और अब ये लॉग e, इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, क्योंकि बेस नहीं मेंशन किया है तो मैंने कहा बेस e होगा, सो लॉग e टू द बेस e, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1, और ये लॉग ऑफ a उधर कांस्टेंट एज यूजुअल है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, आगे क्या आ गया देखो, log x माइनस वाई, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, लॉग e इज 1 और लॉग a। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, कॉम्प्लिकेशन अब कुछ नहीं रह गई इसमें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर बेटा वही अप्रोच जो आपको बताई गई है क्या, कि लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आपसे पूछा जा रहा है, देखो लॉग ऑफ समथिंग और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये आ गया 1 अपॉन समथिंग, ये समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग एज यूजुअल, और प्लस ये आपका कोशिएंट रूल बेटा, फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो क्या होता है सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू, ये माइनस है बेटा इधर, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, नाउ यू नो, अब 1 अपॉन x माइनस वाई का डेरिवेटिव दैट इज x माइनस वाई, 1 अपॉन
x माइनस वाई, और यहाँ x का डेरिवेटिव करेंगे 1, y का डेरिवेटिव माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस इधर देखो ये नीचे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एज यूजुअल डिनोमिनेटर में ही है, इधर बच गया x माइनस वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड माइनस x अगेन x माइनस वाई का 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करना है, लाइक टर्म को कंबाइन करना है। तो व्हाट आर द लाइक टर्म्स हियर, यू कैन सी लाइक टर्म इज, बोलने का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को, एक तो एक्स माइनस वाई एलसीएम ले लो इसका, देखो एक्स माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा, या दूसरे बेसिक कहो कि एक्स माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि दूसरी साइड वो जीरो हो जाए। तो जैसे ही मैं एक्स माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बनेगा, तो एक एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया एक्स माइनस वाई 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, और आगे बच गया एक्स माइनस वाई। क्यों कैंसिल? क्योंकि यहाँ मैंने कहा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और राइट साइड जीरो है वो आपको पता ही है। तो ये आपके पास बच जाएगा, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको आप यहाँ देख लीजिए, ये आपके पास आगे क्या था, x माइनस वाई एज यूजुअल माइनस एक्स, और ये प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो मेरा जो अगला स्टेप होगा बेटा, वो होगा कि कंबाइनिंग द टर्म विच कंटेन डी वाई बाई डी एक्स, इनको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रखिए। इधर देखो x माइनस वाई कॉमन है, तो ये एज यूजुअल माइनस के साथ आ गया, माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स आउटसाइड, और ये प्लस एक्स बेटा यहाँ से, ठीक है कि नहीं, ये टर्म बोलने का मतलब यहाँ से आ गई, और एक टर्म यहाँ से माइनस साइन के साथ, और आगे इधर x एंड x कैंसिल, वो दिख रहा है आपको क्योंकि x पॉजिटिव है, माइनस, इधर बच गया माइनस वाई, और देखो ये माइनस वाई 1 को मल्टीप्लाई करेगा, ये भी माइनस वाई, ये आपका माइनस 2y हो गया, क्लियर हो गया, और अकेला x, x1 को मल्टीप्लाई करेगा तो एक x बच गया, यहाँ ये कुछ नहीं, ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली बेटा अब हमने प्रूव कर दिया, यहाँ भी क्या होगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया y। बोलने का मतलब अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस वन इज नथिंग बट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से x और इक्वल टू 2y। यही मेरे को प्रूव करने को बेटा इसमें पूछा गया था, ये प्रूव करिए। देखो y dy upon dx plus x equal to 2y. So it means this one is very simple. So you can do. आगे चलिए, और क्वेश्चन लिए मैंने इसी टाइप के आपको, अब मैंने देखना डायरेक्ट डेरिवेटिव की है। ये आपके पास है क्वेश्चन में, x रेज टू पावर y माइनस y रेज टू पावर x इक्वल टू a रेज टू पावर b, फाइंड dy बाई dx। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी तब आप डायरेक्ट सर। अब मैंने बताया फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, क्योंकि अदरवाइज आपको अलग अलग करना पड़ेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसको u लेट करना पड़ेगा और इसको v। अगर आप इसको दूसरे वे से करना चाहे तो इसको u, आगे मैंने किया ये क्वेश्चन ऐसे पुट करके भी, और इसको v, ठीक है। और यहाँ आपके पास ये फिर ए रेस्ट पावर b होगा, 0 होगा, लेकिन ये ऐसे टफ पड़ेगा, इसलिए बेटर है सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, क्योंकि मेरे से पूछा है फाइंड dy बाई dx। अब बेटा ये फॉर्म आ गई फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। तो मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट में ही कि फंक्शन रेज पावर फंक्शन का फार्मूला फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ, जो पावर है वो आगे, क्योंकि देखो जब लॉग लिया जाता है तो पावर आगे आती है, log m raised to power n, तो y एंड log ऑफ फंक्शन log x, तो y log x का डेरिवेटिव। बस अगर ऐसे याद रख लिया आपने तो सिंगल स्टेप में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। नो नीड टू सब्स्टिट्यूशन। एंड सेम वे पे हियर अगेन फंक्शन रेज पावर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ, ये देखो पावर आगे आ गई x इंटू लॉग वाई, ऐसे याद रखना। इसको पूरा कंप्लीट फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद रखो कि फंक्शन रेज पावर फंक्शन, और जो फिर डेरिवेटिव किसका, जो पावर है वो पहले, और लॉग ऑफ फंक्शन, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब इजी हो गया, y log x का डेरिवेटिव आता है x रेज पावर y आउटसाइड, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 by x प्लस सेकंड एज यूजुअल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy by dx, सेम वे पे माइनस y by x एंड हियर आल्सो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ log y। देखो बेटा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये जो अभी लिखा है। समटाइम कैंडिडेट ये मिस्टेक कर जाता है, log y का 1 by y लिख लिया जाता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, 1 by y into dy by dx, मतलब log of something प्लस log y into डेरिवेटिव ऑफ x, यू नो 1, तो आगे इसमें कुछ नहीं है। अब बेटा आप लोगों ने dy by dx की टर्म एक साइड करनी है, लेफ्ट साइड ले लो और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये देखिए dy by dx को लेफ्ट साइड ले लिया, तो फर्स्ट से क्या बच गया x रेज पावर y log x, और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये है y रेज पावर x माइनस 1, ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा इंटू x, ये लिखा हुआ है और बार माइनस ही है। एंड सेम वे राइट साइड में ये टर्म बचेगी क्या, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ये लिखा हुआ बेटा x रेज पावर y माइनस 1 इंटू वाई, दूसरी साइड जाएगी तो माइनस होगी, और इधर देखे तो y रेज पावर x log y, दूसरी साइड जाएगी प्लस होगी, ये बाकी कुछ नहीं है, बस बेटे यहाँ से dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट दूसरी साइड, ठीक है, तो यू कैन डू दिस। ओके, आगे एक और क्वेश्चन सेम टाइप से लिया हुआ है, बिल्कुल जस्ट आपको बताने के लिए कि ताकि प्रैक्टिस करें इस तरह से आप, y इक्वल टू log x रेज टू पावर x, फिर से फंक्शन रेज पावर फंक्शन, और यहाँ है x रेज पावर log x, ये आए हुए क्वेश्चन है, सीबीएसई में ऑलरेडी पहले आ चुका है, आई थिंक 2016 या कब, तो ध्यान रखना। तो क्या करना, बिल्कुल मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है विदाउट सब्स्टिट्यूशन, सो dy अपॉन dx फंक्शन रेज पावर फंक्शन, फंक्शन रेज पावर फंक्शन एज यूजुअल इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, पावर पहले log ऑफ log x, log ऑफ log x, एक log हमने लगाना था log x को, और आगे सेम x रेज पावर log x, डेरिवेटिव ऑफ ये पावर पहले आगे log x इनटू log ऑफ x, ये बन गया log x का स्क्वायर। ओके बेटा देखो यहाँ डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, log x रेज पावर x, ये आ गया फर्स्ट फंक्शन एज यूजुअल, log ऑफ समथिंग 1 अपॉन log x, ये सम स्टेप को समझ लीजिए अच्छे से, ये आपके पास है, जब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए समथिंग हुआ, log ऑफ समथिंग दैट इज 1 अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, फिर से मतलब जब log x का डेरिवेटिव किया जाएगा फिर से, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by x, फिर देखो पहले बाहर वाले log का हुआ तो इसने 1 अपॉन log दिया, फिर ये जो log x का हुआ तो 1 by x, और आगे सेकंड इनटू log x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सेम ईयर x रेज पावर log x एज यूजुअल, और मैंने बताया ये यहाँ बन गया बेटा log x का होल स्क्वायर, दिस वन इज नथिंग बट log x होल स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन रेज पावर n, तो क्या होता है n इंटू फंक्शन रेज पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 आपको पता है 1 ही होगा, ये ऐसे इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1, ये बन गया ना, n इंटू फंक्शन रेज पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दैट इज, वो log x ही था आपका फंक्शन, तो वो 1 आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसको समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब फिर बेटा यहाँ से बाकी काम आप कर लेंगे, कुछ नहीं है, जो लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन है वो यहाँ से चेक करके लिख लेना खुद, 2 log x अपॉन x की पावर दिस, यहाँ कुछ नहीं किया है, x से x कैंसिल 1 अपॉन log x, और आंसर मिल गया। और एक और मैंने आपके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कैंडिडेट बहुत बार मिस्टेक कर जाते हैं, और मिस्टेक बेटा मैं फिर कह दूं, मिस्टेक ये ही करते हैं जनरली कि जब x रेज पावर x का फार्मूला यूज करना होता है तो कैंडिडेट x रेज पावर n वाला फार्मूला यूज कर देता है, ये n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस 1, तो देखो ये सब का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, बिल्कुल ये x रेज पावर x का सेपरेट, x रेज पावर a का सेपरेट, a रेज पावर x का सेपरेट, और a रेज पावर,
अब आपको मैंने बताया ये तो फंक्शन रेट पावर फंक्शन है, तो डायरेक्ट फार्मूला मत लगा बैठना, इसमें फंक्शन रेट पावर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर आगे आएगी लॉग ऑफ फंक्शन। तो अब तो मैं बहुत बार कह चुका, मैं याद हो गया होगा। प्लस ये ठीक है, ये फंक्शन रेट पावर एन है, मतलब वेरिएबल रेट पावर कांस्टेंट है, तो ये फार्मूला में आता है एन इंटू एक्स रेट पावर एन माइनस वन। और ये डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, जैसे ई रेज पावर एक्स का तो ई रेज पावर एक्स होता है, बट ए रेज पावर एक्स का ए रेज पावर एक्स इंटू लॉग ए। मैंने प्रूफ आगे फिर दिया हुआ दोबारा इसका, तो आप उसको देख लेना, बट ये आपको याद रखना है बेटा कि ए रेज पावर एक्स का क्या फार्मूला, और ये 0। ठीक है, तो आगे बिल्कुल इजी, यू कैन कंप्लीट दिस, सिंप्लीफाई। ये देखिए प्रोडक्ट रूल लगाया सिंपली, तो ये फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग दैट इज 1/x प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x1। तो ये तो आपको पता ही था, एक्स रेट पावर x का मैंने क्वेश्चन करवाया, एक्स रेट पावर x 1 प्लस लॉग x a इंटू एक्स रेट पावर a माइनस 1, और ये a रेट पावर x इंटू लॉग a। ये लिया हुआ है आप लोगों के लिए, देखो क्वेश्चन कि y इक्वल टू a रेज पावर x, लॉग की हेल्प से कर जाओ, लॉग y इक्वल टू लॉग a रेज पावर x क्या बन जाएगा, x लॉग a। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का डेरिवेटिव 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू लॉग ऑफ a into derivative of x is 1. I think you have understood this question. So dy by dx, y दूसरी साइड चला गया, y log a, and what is y? y is nothing but a raised power x. तो ये मैंने अभी पीछे बताया था आपको यूज करके कि a raised power x का डेरिवेटिव क्या होता है, a raised power x into log। मिल गया प्रूफ? तो ये देखो ये यूज किया मैंने, a raised power x का डेरिवेटिव a raised power x into log a। अब इसी का बेटा e raised power x का भी यहाँ से बन जाता है, रिप्लेस ये बाई e, ये e raised power x log e, and what is log e? 1, क्योंकि बेस यहाँ पर e है, log e to the base is 1। Okay, so one more question to you, y equal to x raised to power cos x plus cos x raised to power sin x। अब बेटा ये मैंने आपको जस्ट, मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको स्टेप शो करने के लिए कि देखो कैसे, कभी भी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉग मत ले लेना बोथ साइड, कैंडिडेट मैक्सिमम गलती ये करते हैं इस क्वेश्चन में। मैंने इसलिए इसके बेसिक स्टेप शो करने की कोशिश कि अगर आपने करना है तो इसको u लो और इसको v लो, या तो सीधा फिर डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, क्या कि dy अपॉन dx फंक्शन रेट पावर फंक्शन इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, और यहाँ भी प्लस फंक्शन रेट पावर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस। ठीक है, तो या फिर अलग अलग पुट करना, तो इसको u कहो इसको v, तो dy अपॉन dx निकालना तो du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx, here u इक्वल टू दिस एंड v इक्वल टू दिस। ये आगे देखो फंक्शन रेट पावर फंक्शन, ले लो लॉग बोथ साइड, ये लॉग लिया, लॉग x रेट पावर दिस तो बन गया cos x log x। मैंने बताया था ना ऊपर इसी का डेरिवेटिव करना, तो cos x log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du अपॉन dx, cos x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ये हो ना फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, और log x सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, तो ये u इधर आएगा तो उसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी x cos x पावर में, और यहाँ बच गया cos x अपॉन x माइनस साइन x log x। ये तो बेटा अब आप खुद भी कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं। v क्या था मेरा, cos x रेट पावर sin x, log v log दिस sin x आगे आ गया, एंड डिफरेंशिएट 1/b dv अपॉन dx sin x log of something 1 अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग माइनस sin x cos x का। ठीक है, ये माइनस साइन अपॉन एक्स cos x tan बन जाएगा। ठीक है, आगे log ऑफ cos x इंटू ये आ गया सेकेंड एज यूजुअल इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन दैट इज cos x। तो लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन जो भी है वो कर सकते हैं, ये सिंपल du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई, तो dy अपॉन dx नथिंग, इसमें वैल्यू 1 में पुट कर दो, ऐड कर दो मतलब दोनों को, और वो आंसर कुछ नहीं। ठीक है,
तो चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, cos x रेज टू पावर y इक्वल टू cos y रेज टू पावर x। देखो अब बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो यस क्वेश्चन यही पूछा है बेटा, इसमें फाइंड dy अपॉन dx, मैंने लिखा नहीं है तो आपने वही निकालना है इसमें, क्या dy अपॉन dx पूछा गया है आपसे। तो इस क्वेश्चन में अब जब बोथ साइड है प्लस में नहीं है तो सीधा लॉग ले लो, अब यू भी लेने की जरूरत नहीं है, प्लस में होता तो लेना पड़ता है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा, log cos x रेज पावर y, log cos y रेज पावर x, पावर जो है वो आगे आ जाएगी। ठीक है, पावर आगे आगे देखो y log cos x, x log cos। अब बता दो कहाँ डिफिकल्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा और जैसे कंपोजिट जहाँ जहाँ है वहाँ कर दिए। तो देखिए y आपका फर्स्ट फंक्शन, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव ये आप लोग देख लीजिए, ये हो गया, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो log of something means 1 upon something cos into derivative of cos, ये ले लिया, प्लस सेकेंड है देखो एज यूजुअल into derivative of first, तो ये derivative of first कर दिया। ध्यान रखना फर्स्ट into derivative of second प्लस सेकेंड into derivative of first, यहाँ भी वैसे x into derivative of log of this, तो ये cos y हो गया, log का 1 upon cos y into derivative of cos y, ये चला। ठीक है, और प्लस log ऑफ cos y बाहर आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज 1, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बस हो गया डेरिवेटिव का काम। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, cos x का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन, तो माइनस y साइन x अपॉन cos x प्लस log ऑफ cos x dy अपॉन dx, इधर भी वैसे ही बना, cos y का माइनस साइन y, माइनस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स भी बनेगा, क्योंकि y अगेन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई। नेक्स्ट स्टेप में बेटा मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो दो टर्म है अंडरलाइन की है, ये बाहर ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर बचा लॉग कॉस एक्स, और ये टर्म लेफ्ट में आएगी तो प्लस होगी एक्स टेन साइन अपॉन कॉस टेन, और सेम वे पे ये साइन ओवर कॉस दूसरी साइड जाएगी तो वाई टेन एक्स बन गई और लॉग कॉस वाई, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स। So that's all, y tan x plus log cos y upon x tan y plus log of cos x। ठीक है, मैं चाहता तो ये था कि आगे इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव भी कर दूं, लेकिन बेटा मैंने उनको छोड़ दिया क्योंकि इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डोंट फॉरगेट दिस रूल। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम, और डेरिवेटिव का जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपको इजी लगता जाएगा। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। और मैंने आपको बताया था कि मंडे को जो टेस्ट होगा मैं यहाँ तक कहाँ से स्टार्ट करूँगा, कंटिन्यूटी से लेके इस एक्सरसाइज तक टोटली। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपकी क्वेरी होगी, यू कैन आस्क। कल का दिन है, मतलब आपके पास पूरा संडे का दिन रहेगा, और आज का तो है ही है, तो प्लीज, है ना, सैटरडे और संडे 2 दिन आपके पास ये कंप्लीट मिल रहे हैं, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अच्छे मार्क्स लेने हैं इस बार, गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे पास इसमें थोड़ा सा और बच गया जो एक्स्ट्रा है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट आल्सो, पैरामीट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे, और एक दो थ्योरम है, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। बस इसी से आपका फिर जो सिंपल डेरिवेटिव है, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव का टॉपिक, मतलब एक लेक्चर हमारा और यूज होगा और ये खत्म हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।